آسٹریلیا بہت زیادہ کریز ہے اس کنٹری کا, وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے. اس کا تھوڑا سا اوور ویو بتائیے گا کہ یہ کیا ہے, کس طرح اس ملک کا جو نو ڈاؤٹ اسٹوڈنٹس کی جو ون آف دا موسٹ ڈیسٹینیشن رہی ہے. اگر ہم اس کی ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, ون آف دا ایڈوانسڈ ایجوکیشن, وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز دیکھ لیں, پڑھائی کے ساتھ ایک اچھا ارن کر سکتے. وہاں پہ جو آپ کو سیٹلمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت ڈائیورس ملتی ہیں. اب وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اس کے ایریا کے حساب سے بھی پرکس مل رہے ہوتے ہیں. اٹ کمس ٹو PSW. اچھا, اس کے کتنے ایکسپینس جو ہے وہ کتنے ریکوائرڈ ہوتے ہیں آسٹریلیا کے لیے؟ دیکھیے آسٹریلیا کے لیے اوبیسلی آپ کیونکہ وہاں پہ رفلی جو آپ کی آفٹر اسکالرشپ فی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے 24, 25, 26. یہ ایک ایوریج فی ہے وہاں پہ آفٹر اسکالرشپ پر ایئر. پھر اس کے بعد ایمبیسی فی آ گئی, ٹریول ایکسپینس آ گیا, آئلس ایکسپینس آ گیا, اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے وہاں جانے میں آپ کے ایکسپینس آ سکتے ہیں, وہ سرٹن اماؤنٹ ہے جتنی آپ کو جو اسپانسر کر رہے ہیں اس کی انکم اتنی ہونی چاہیے. 72,000 آسٹریلین ڈالر کے قریب ہے. جو آسٹریلیا کا خاص طور پر یہ جو پورا پروسیس ہے اتنا پیچیدہ ہے, قسم کمپلیکس کیوں ہے یہ؟ آسٹریلیا ہر بچے کو انٹرٹین نہیں کرتا. وہ حالانکہ جانا ہر بچہ جانا چاہتا ہے, بلکہ وہ اس معاملے میں پالیسیز چینج کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ سفر بھی کرتے ہیں. بچہ جب یہاں سے وہاں جا رہا ہے نا, تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی ویزا ریکوائرمنٹ کیا ہے. آسٹریلیا آپ کو دیتا ہے سرکمسٹانسز بیسس پہ, کہ آپ کے فائنینشیل سرکمسٹانسز کیا ہیں, آپ کے فیملی سرکمسٹانسز کیا ہیں, آپ کی انٹینشنز کیا ہیں, اکیڈمک ہسٹری کیا ہے, کیا ایکسپیرینس گین کیا ہے. وہ ان سب چیزوں کو ایویلویٹ کر کے پھر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو انہوں نے آنے دینا ہے کہ نہیں آنے دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, ہمارے پوڈ کاسٹ سیریز جو اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے ہے, یہ ایک نیا پروگرام ہے. آج ہم جس کنٹری کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ آسٹریلیا. وہاں پر کیا ویزا پروسیس ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. ایز یوزول ہمارے ساتھ میم امائمہ افتخار خان موجود ہیں. میم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ, میں ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آسٹریلیا بہت زیادہ کریز ہے اس کنٹری کا ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا, جسے کہتے ہیں کہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے. اس کا تھوڑا سا اوور ویو بتائیے گا کہ یہ کیا ہے, کس طرح اس ملک کا جو دیکھیے آسٹریلیا نو ڈاؤٹ اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا ون آف دا موسٹ پریفرڈ ڈیسٹینیشن رہی ہے. جب بھی اسٹڈی ابراڈ کی باری آتی ہے تو اسٹوڈنٹس کی پہلی یا دوسری جو پریفرنس ہوتی ہے وہ آسٹریلیا ہی ہوتی ہے. اس کی جو وجوہات ہیں وہ بے پناہ ہیں. مینس کہ اگر ہم اس کی ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, ون آف دا ایڈوانسڈ ایجوکیشن سسٹم ان ورلڈ. سیکنڈلی اگر ہم وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز دیکھ لیں تو بچے پڑھائی کے ساتھ ایک اچھا ارن کر سکتے ہیں. تھرڈلی وہاں پہ جو آپ کو سیٹلمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت ڈائیورس ملتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اسٹریمس ملتی ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ اپنا ویزا اپلائی کر کے وہاں پہ سیٹلڈ ہو سکتے ہیں آفٹر یور اسٹڈیز. اب جو سب سے مین بچے کو وہ ایک چیلنج آتا ہے نا, وہ پاکستان سے وہاں جانا آتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آسٹریلیا نہ تو ہر بچے کی پروفائل انٹرٹین کرتا ہے, نہ ہی ان کو ہر بچہ چاہیے ہوتا ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی کافی زیادہ جو ایک پرابلم کریٹ ہوئی اور اس کی سب سے مین ریزن یہ تھی کہ جو ان کی نیٹ مائگریشن تھی اوور دا ایئرس وہ بہت زیادہ ہو گئی. اب اوور دا ایئر جو انہوں نے کئی سالوں میں ایک مائگریشن اچیو نہیں کی, وہ انہوں نے کچھ 2 سالوں میں اچیو کی, جس کی وجہ سے وہ جو ان کی ایک ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن ہے اس سے زیادہ چلے گئے. اور جب انہوں نے اس کو سارا ایویلویٹ کیا, دیکھا کہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو مائگریٹ ہو کر آئے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. جب انہوں نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو دیکھا تو ان میں سے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس وہ تھے جو انہوں نے ادھر جا کے اپنا ویزا ایک چینج کرا لیا. اینڈ سیکنڈلی یہ تینوں آتے ہیں ادھر میٹروپولیٹن میں, اور باقی پورا آسٹریلیا ریجنل میں آتا ہے. اب وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اس کے ایریا کے حساب سے بھی پرکس مل رہے ہوتے ہیں when it comes to settlement, when it comes to PSW. ٹھیک ہے, تو وہ ایک بچے کے لیے جب بچے نے آسٹریلیا جانا ہے تو یہ اس کو ایک تھرونلی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ آپ کو کس جگہ پہ جانا چاہیے, آپ کی انڈسٹریز کہاں پہ, آپ کہاں پہ اپرچونیٹیز ملیں گی اینڈ ایوری تھنگ. اچھا, وہاں پہ اسٹیٹ کی بھی قسم کی یہ بھی چوز کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کہاں پہ آپ نے جا کے رہنا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو آپ کی پرسنل چوائس ہے نا کہ آپ وہاں پہ ریجنل میں رہنا چاہ رہے ہیں یا پھر میٹروپولیٹن میں رہنا. انہوں نے کیٹیگرائز کیا, میٹروپولیٹن میں برسبن آ جاتا ہے, میلبرن آ جاتا ہے اور سڈنی آ جاتا ہے. لیکن اگر لیٹس سے میں ہوں, میں اچھا ریسٹ آف دا آسٹریلیا جو وہ ریجنل ہے, ریجنل میں آپ کو جو جب آپ TR لیتے ہیں وہاں پہ پوسٹ اسٹڈی ورک اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایکسٹرا پوائنٹ بھی ملتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی جو یہ آپ کا ریجنل ہے اس میں آپ کو 3 سال کی TR ملتی ہے, اور جو آپ کا میٹروپولیٹن ہے وہاں پہ آپ کو 2 سال کی ملتی ہے. تو آپ کو ایریا کے حساب سے پرکس مل رہے ہوتے ہیں. موسٹلی بچے ریجنل جانا اس لیے بھی پریفر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو جو بعد
स्टडीज के बाद का स्टे है वो थोड़ा सा लेंथी मिल जाता है। अच्छा, इसके कितने एक्सपेंस जो है वो कितने रिक्वायर्ड होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए? देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑब्वियसली आपने सबसे पहले तो ये अपने एनुअल एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करना है ना, क्योंकि वहाँ पे रफली जो आपकी आफ्टर स्कॉलरशिप फी जो है वो स्टार्ट हो जाती है 24, 25, 26, ये एक एवरेज फी है वहाँ पे आफ्टर स्कॉलरशिप पर ईयर। ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है, एक जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक आपके इनिशियल और एक आपके एनुअल। एनुअल में आपने ये देखना है कि आपने उधर जाकर पूरे साल में कितने एक्सपेंस आएंगे, पूरे साल की फीस। इनिशियल में आपने ये देखना होता है कि आपके यहाँ से वहाँ जाने में एक्सपेंस कितने आ रहे हैं। अब उसमें आपकी सेमेस्टर फी आ गई, आपकी ये हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो आ गई, फिर उसके बाद एम्बेसी फी आ गई, ट्रैवल एक्सपेंस आ गया, आइल्स एक्सपेंस आ गया, आइल्स से पीटीए कोई भी टेस्ट आपने करना है, और इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि यहाँ से वहाँ जाने में आपके एक्सपेंस आ सकते हैं वो। लेकिन इसके अलावा भी जाहिर सी बात है यहाँ से वहाँ जाना जो है वो मकसद नहीं है, वहाँ जाते जाके आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप अपनी आपको लॉन्गर टर्म के लिए जो आपके पास बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, इसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है? देखिए बैंक स्टेटमेंट जो है ना, इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको ये डिस्कस करूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये पूरा आपका प्रोसेस कितना इफेक्टिवली हुआ इस पे मैटर करता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लाइक अदर कंट्रीज जहाँ पे आपने एप्लीकेशन अपनी दी, आपका ऑफर आ गया एंड देन आपका वीज़ा लग गया। नहीं, इसके लिए आपको प्रॉपर एक वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी चेक से जाना पड़ता है, जिसको जीटी पहले कहते थे और अब जीएसटी कहते हैं। ठीक है, उसमें अब आपने डिफरेंट अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने, अपने डिफरेंट सर्कमस्टांसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जाते हैं। ठीक है, उसमें कम से कम जो आपकी एक सर्टेन अमाउंट है, जितनी आपकी आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उसकी इनकम उतनी होनी चाहिए। 72,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के करीब है पर एनम, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा बनती है। उसकी 1 साल की इनकम होगी तो वो एलिजिबल है ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट को स्पॉन्सर करने के लिए। उसके अलावा फिर आपके फाइनेंशियल्स में आ जाते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, एक आ जाते हैं आपके सोर्स ऑफ इनकम जो कि भी मैंने बताया कि इतने होने चाहिए, एक आपके आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट में पूरे साल की फी एट द टाइम ऑफ जीटी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पूरे साल के एक्सपेंस, ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंस होने चाहिए जो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 10 to 12 मिलियन की बनती है। ठीक है, और जब आपकी जीटी या जीएसटी पास होती है उसके बाद जब आपको अप्रूवल आती है, आपका सीओई आता है, मींस आपका वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेटर आता है, उसके बाद जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करनी है उस टाइम पे भी आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। देनी है। हाँ, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आपकी सेमेस्टर फी क्योंकि आप पे कर चुके होते हैं तो उसमें से वो कट हो जाती है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 6, 7, 8 मिलियन की जो है ना स्टेटमेंट चाहिए होती है। डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फी जाहिर सी बात है वेरी करती है, वो तकरीबन 6 से 8 मिलियन की। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए? देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी जो एंट्री पॉइंट है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, डिप्लोमा 1, डिप्लोमा 2, डिप्लोमा 1, डिप्लोमा 2 जो है वो पाथवे प्रोग्राम से जिनकी परसेंटेज कम होती है वो जाते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट बैचलर्स है, फिर मास्टर्स है। अगर हम इसको नटशेल में देख लें तो बैचलर्स के लिए मिनिमम आपकी 70-75% होने चाहिए विद योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एंड अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो उसमें जो आपकी लास्ट डिग्री उसमें एटलीस्ट आपके 55% अबव होने चाहिए परसेंटेज पे। और हर किसी के जो पाकिस्तानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनका जो ये परसेंटेज का वो ग्रेडिंग स्केल है ना वो डिफरेंट है, तो वो फिर डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में उसका क्या ग्रेडिंग स्केल बन रहा है और क्या रिक्वायर कर रहे हैं। इवन मैट्रिकुलेशन, हाँ वो भी डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसका जो ऑस्ट्रेलिया का खास तौर पर ये जो पूरा प्रोसेस है ये इतना पेचीदा, एक किस्म कॉम्प्लेक्स क्यों है ये? देखिए जैसे भी मैंने आपको बताया जीटी जीएसटी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हर बच्चे को एंटरटेन नहीं करता। वो हालांकि जाना हर बच्चा जाना चाहता है, बल्कि वो इस मामले में अपना ये पॉलिसीज चेंज करते हैं, वो बहुत ज्यादा सफर भी करते हैं। ठीक है, उनकी भी जस्ट लाइक यूके, उनकी भी जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे रिलाई कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी एंटरटेन नहीं करते उनके लिए जो। अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और इसको आसान कर दूं, बच्चा जब यहाँ से वहाँ जा रहा है ना तो उसको ये देखना चाहिए कि इसकी वीजा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि उसने ऑनलाइन तो पढ़ना नहीं है, उसने पाकिस्तान रह के ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं लेनी। अब हर कंट्री का जो वीजा देने का एक सिस्टम या क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया आपको देता है सर्कमस्टांसेस बेसिस पे कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस क्या है, आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी एकेडमिक हिस्ट्री क्या है, प्लस आप किस डिग्री में जा रहे हैं, क्या आपने जो है वो ओवर द टाइम आपने स्किल्स डेवलप किए हैं,
क्या एक्सपीरियंस गेन किया है, वो इन सब चीज़ों को एवेल्युएट करके फिर वो ये डिसाइड करता है कि आपको उन्होंने आने देना है कि नहीं आने देना। यूके का तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ना, बस अप्लाई किया, कैश लिया, अपनी बैंक स्टेटमेंट दी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया, 70 पॉइंट्स पूरे किए एंड देन आपको वीज़ा मिल गया। बट ऑस्ट्रेलिया इंटायरली डिफरेंट गेम है। अच्छा, यहाँ पे वीजा रिफ्यूज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बल्कि होता है, ऐसा कई केसेस में देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगना बड़ा मुश्किल होता है, अक्सर रिफ्यूजल आ जाती है। इसकी वजह, उसकी यही वजह है ना। देखिए जब आप अपनी जिस कंट्री में जा रहे होते हैं, देखिए एक होती है ख्वाहिश और एक होती है कि क्या वाकई उस जगह पे पूरा एलिजिबल भी है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल एक मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि मैं मार्स पे जाऊं, लेकिन फिलहाल मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट मीट करनी है, उतना मेरे पास बजट होना चाहिए एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसी तरह से बच्चों को देखें, मैं खुद एक कंसल्टेंट हूँ, एक कंपनी रन कर रही हूँ, ठीक है, डिफरेंट सिटीज में। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि बच्चों को बस कहते हैं आप अप्लाई करो, जो आपका वीजा ना आपकी किस्मत पे होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ रिक्वायरमेंट है, अल्लाह ताला ने इंसान को कहा है कि बस ठीक है भाई, अकल है तुम्हारे पास, उसको भी इस्तेमाल करो। आपका कभी भी वीजा आपकी किस्मत से नहीं मिल सकता अनलेस अनटिल आप उसकी रिक्वायरमेंट में जो है ना 2 नंबरी ना करो, ठीक है। अब आप उसकी रिक्वायरमेंट को देखो कि वीजा आपको किन बेसिस पे मिल रहा है। आपको सर्कमस्टांसेस बेसिस पे मिल रहा है, क्लियरली उस बच्चे की जो स्पॉन्सर की इनकम है वो 72,000 और अबव है ही नहीं, आप किन बेसिस पे उसका जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल, उसकी भी कुछ पर्टिकुलर्स होने चाहिए, उसको देखो। फिर उसके बाद आप उसकी SOP, जब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आपने वो एक्सप्लेन करनी है, उसमें बच्चे की इंटेंशंस, बच्चे ने क्या ऑलरेडी किया हुआ है, क्यों करने जा रहा है, डिग्री वो क्यों चेंज कर रहा है, अगर वो सेम स्ट्रीम में जा रहा है तो उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सब चीजें जितनी क्लियर होती है ना, उतना अच्छा आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि किसके जरिए जा रहा है, उसका स्टूडेंट कंसल्टेंट जो है वो यहाँ पे ना मैं समझूंगी कि ये वाला, अगर इस बात को मैं कहूंगी तो ये थोड़ी सी बाइस्ड हो जाएगी, लेकिन हर बंदा ना अपने लेवल पे अच्छा ही काम कर रहा होता है। आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल जो कि जो है ना वो मतलब कहे कि नहीं आई एम गुड एंड एवरीबडी रॉन्ग, वैसा नहीं है। हर बंदे का अपनी एक्सपर्टीज होती है, अपना एक तरीका होता है जिसकी बेसिस पे काम करना होता है। मैटर ये करता है कि क्या वो आपको ऐसी क्या कहते हैं फैक्चुअल काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो आपकी प्रोफाइल को समझ के इन डेप्थ जाकर वो आपको ऑप्शंस दे रहा है, या सिर्फ वो कह रहा है बस ठीक है अप्लाई करो हाल तुम अप्लाई करो। तो वो बच्चे आजकल, क्योंकि हमारे खौफ बिकता है ना यहाँ पे, तो वो बच्चे को होता है वो कि पता नहीं अगर इधर से ना कराया इधर से करा लिए तो क्या हो जाएगा, इधर से मतलब अभी भी बच्चे जो है ना वो असेस करते हैं कंसल्टेंट्स को, काउंसलर्स को इस बेसिस पे कि ये इसने मेरे मामू के उसको वो अपना कंफर्ट जोन नहीं देखते। अच्छा, एक चीज और है, कौन से ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया जो प्रेफर करता है वीजा देने में? देखिए वही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स, अब ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और होगी, यूके के हिसाब से स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और होगी, यूएस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और कोई और होगी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्या है कि आपकी इंटेंशंस क्लियर हो, ठीक है, आप उसको क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, आपकी जो फाइनेंसेस हैं लाइक आपकी ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल एक्यूरेटली और जेन्युइन प्रोवाइड किए हो। अच्छा। और जो भी बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स और भी बड़े डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ GST। थोड़ा सा इसको पहले GT था, अब GST पे वो लेकर आए हैं, तो वो सारी चीजें जितनी जेन्युइन होंगी वो आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। अच्छा, एक चीज और है, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो अक्सर एक हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में कंसेप्ट पाया जाता है, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया? क्यों रेजिस्ट करता है? आप अभी एक रिसेंट ग्राफ था, मैं उसको पढ़ रही थी। देखिए नाइजीरिया की अगर आप बात कर लें, वो भी अंडर डेवलप में आती है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स भी जाकर अपनी एटलीस्ट डिग्री कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे टैक्स पे करते हैं, वहाँ पे जो कैश इन हैंड जॉब्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है। बट पाकिस्तानी क्या करते हैं, जाते ही जाके उनका जो पहला पर्पस होता है वो डिग्री ड्रॉप करना है। दूसरा पर्पस ये होता है कि सारी जॉब वो कैश इन हैंड करें ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। जब अभी मैं रिसेंट एक ग्राफ पढ़ रही थी, उसमें सारे एनालिसिस देख रही थी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लीस्ट पे है, ठीक है।
जेन्युइन फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तान सबसे ऊपर है, टैक्स पेयर में सबसे नीचे है, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने डिग्री ड्रॉप की उसमें सबसे ज्यादा ये पाकिस्तानी है। इंडियन देख लें, नाइजीरियन देख लें, इवन बांग्लादेश के देख लें, कि वहाँ जाके एटलीस्ट अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करते हैं और ये इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस नहीं करते। इस वजह से जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बारी आती है तो उनमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है एम्बेसीज की। अच्छा, तो क्या यूनिवर्सिटीज जो है मिसाल के तौर पे आप डील करती है ना मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज को, तो क्या वहाँ पर आपको इस चीज का फिर जारी बात है आपको भी इम्पैक्ट तो आप पे भी पड़ता होगा आपके? बिल्कुल, अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे एजेंट्स को कट डाउन करने का भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया था और वो इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया को लगता है, होम अफेयर को लगता है कि सबसे ज्यादा जो इस सब की वजह है ना वो एजेंट्स है, कि वो प्रॉपर्ली बच्चों को गाइड नहीं करते, उनकी काउंसलिंग नहीं करते, उनके ऊपर जो है बच्चा जाता ही सबसे पहले अपनी डिग्री चेंज अपनी डिग्री ही ड्रॉप कर देता है। अब आप ये देखें ना, वो उनकी भी बर्दाश्त है, सही कह रहे हैं आप, सही बात है। तो वो दे डोंट केयर, वो पाकिस्तान पे वो सिर्फ नहीं चल रहे, उनके पास बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, दे डोंट केयर। अच्छा, वहाँ पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, वहाँ पर क्या किस तरह से स्टूडेंट मिसाल के तौर पे यहाँ पे चला जाता है, तो उसके लिए वहाँ पर क्या ऐसी चीजें हैं जिससे वो देखिए डिफरेंट, आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आपको अलाउड होता है वो 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है, ठीक है, तो उसमें रहकर आप डिफरेंट जॉब कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों को ये कहती हूँ कि आप इंटरेक्टिव जॉब किया करें, ताकि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो वो आपको आगे PR के टाइम पे आपको हेल्प करे। इंटरेक्टिव जॉब्स करें, लोगों से इंटरेक्ट करें, अपने स्किल्स डेवलप करें, आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा। अच्छा, ये जो सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें सारी बात है, उसकी PR भी आती है और भी सारे मामला आते हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा क्या क्या वहाँ पे। देखिए, ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट जिस भी कंट्री में होगा वहाँ पे आप आफ्टर योर डिग्री सेटल हो सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, आपको एटलीस्ट 2 साल ऑस्ट्रेलिया में 24 मंथ्स जो है ना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आप 24 मंथ से कम पढ़ते हैं तो फिर आपको वहाँ पे आप TR अप्लाई नहीं कर सकते, पोस्ट स्टडी वर्क आपको तकरीबन 2 से 4 साल का मिल जाता है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन में गए हैं तो 2 साल का आपको मिलता है, अगर आप रीजनल में गए हैं 3 साल का, प्लस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की उनकी एक लिस्ट है, अगर उसमें से आपने कोर्स चूज किया हुआ तो प्लस आपको 2 इयर्स का मिल जाता है, तो आपका स्टे अप टू 4 इयर्स का हो जाता है। फिर जब वो आपके पास मैक्सिमम टाइम है अपने आप को PR पे शिफ्ट करने का। PR सारी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आपने एक अपना स्ट्रीम चूज करनी है, फिर उसमें अपने पॉइंट्स पूरे करने हैं, एंड देन आप आगे जो है 5 साल अपने कंप्लीट करके वहाँ पे पासपोर्ट क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया जो है सब कंट्री से एक किस्म का टफ कंट्री है वीजा देने के हवाले से? कनाडा इससे ज्यादा है, अच्छा, USA इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा से मुराद की ये तीनों जो है ना सर्कमस्टांसेस बेसिस पे आपको वीजा देते हैं ना। नहीं, उन कंट्रीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट्स जो है अक्सर मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का क्रेज है स्टूडेंट्स में भी और चाहते भी हैं कि वहाँ पर उस मुल्क में जाएं, सारी बात है, गोरा मुल्क है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आप स्टूडेंट्स को कहना चाहें कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जो ज्यादा ख्वाहिशमंद है? देखिए, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को थ्रॉली जो है ना वो एवेलुएट कराएं। अगर आप वीजे के लिए जो है वो एलिजिबल हो रहे हैं तभी वहाँ पे एडमिशन अप्लाई करना। एक्सेप्टेंस लेना, ऑफर लेटर लेना जो है ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा। सारा टास्क आपका किसी कंट्री का, किसी स्पेसिफिक कंट्री का वीजा जो है वो एक्वायर करना होता है, ठीक है। वीजा एक्सेप्टेंस इज समथिंग डिफरेंट एंड गेटिंग योर एक्सेप्टेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी इज समथिंग डिफरेंट। सो इन दोनों को मिक्स ना किया करें। ये मत समझिए कि अगर आपका ऑफर लेटर आ गया तो अब मतलब उस कंट्री की जो एम्बेसी उस पे फर्ज है कि उसने आपको वीजा जो है ग्रांट करना ही करना। दोनों एक डिफरेंट चीजें। अगर आप वहाँ की वीजा रिक्वायरमेंट को मीट करें देन गो फॉर इट, अदरवाइज बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर कर ले। 1 साल आप कहीं और किसी और कंट्री में चले जाए, वहां से आप अपने क्रेडिट ट्रांसफर करवा ले, मतलब डिफरेंट अपने सर्कमस्टांसेस चेंज ही करने हैं ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने प्रोफाइल को खराब मत किया करें, खराब ना किया, वो हमेशा के लिए रह जाता है। ऑस्ट्रेलिया को ना बना रहे हैं, इसके अलावा भी सोचें, और भी सोच सकते हैं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स किस तरह से जो है उनका क्रेज है जाने का, तो ये तमाम तफसीलात आप सुन रहे थे। मैं इफ्तिखार की ज़बानी उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का कमेंट्स की सूरत में इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।